اسپیشل گیسٹ جو کہ جرنلسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، فہمیدہ اسلام، انہوں نے مجھے جوائن کر لیا. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ایک بار پھر سے. وعلیکم السلام. ہاں یہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، اور ایک بار اور پھر سے یہاں پہ آنے کی خوشی رکھتی ہوں میں. بالکل. اچھا، یہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ڈسکشن کی تھی، بڑی سیریس ڈسکشن ہو گئی تھی، پولیٹیکل ریولیوشن اور یہ سارے ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے تھے. اب کچھ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر یونس جو ہیں ان کے آنے کے بعد پاکستان اور جو بنگلہ دیش ہیں ان کے تعلقات میں بہتری آتی جا رہی ہے ڈپلومیٹک سطح پر. ابھی سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ آلموسٹ 15 سالوں کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو فارن آفس ہے دونوں ممالک کے، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں سیکرٹری سطح پر، ان کا رابطہ ہوا ہے. اور جس میں یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ پاکستان سے بنگلہ دیش نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل اپالوجی کی جائے فور 71 اور اس طرح کے دیگر ایشوز جو بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو روکتے ہیں یا ایک بیریئر ہیں، وہ ختم کر کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جائے. تو آپ اس حوالے سے کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ اس ریولوشن کے بعد اور ڈاکٹر یونس کے آنے کے بعد کس طرح سے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو بنگلہ دیش میں دیکھا جا رہا ہے؟ I would like to say in fact کل ہی میں جو بنگلہ میں جہاں ہم لائیو ٹاک شو کرتے ہیں وہاں پہ اس بارے میں کچھ بات بھی ہوا تھا ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ. یہ بنگلہ دیش کے ایکچولی بہت سارے لیولز آف پیپل ہے. کچھ عام طور پہ کچھ لوگ کچھ ایک طریقے سے سوچتے ہیں، کچھ جو ڈپلومیٹک لوگ ہیں وہ کچھ اور طریقے سے سوچتے ہیں. جہاں تک میرا ماننا ہے ڈاکٹر یونس صاحب کے آنے کے بعد ان کا ایک ڈائلاگ، انہوں نے ایک ڈائلاگ دی تھی کہ دیکھو میں کچھ اور کام کرتا تھا، تم لوگوں نے مجھے چنا یہاں پہ کچھ ہمارے کچھ مس ہیپس ہو گئے تھے، وہ سارا سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے. اگر تم لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کس طرح سے کر رہا ہوں تو میں واپس اپنے کام پہ چلے جانا پسند کروں گا. ٹھیک ہے، تو ابھی what I should say is like اگر میں اپنی بات بولوں تو میں نے ہمیشہ سے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان was way ahead to get along with بنگلہ دیش. اسٹارٹنگ فرام کرکٹ، میں کرکٹ بہت پسند کرتی تھی. ایک دو بار میں عید کے پروگرام میں بھی شاید کہہ چکی ہوں. تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب وسیم اکرام کا زمانہ ہوا کرتا تھا، میں بہت بچپن سے میں کرکٹ کی فین تھی، تو وسیم اکرام بالکل گلے لگاتے تھے بنگلہ دیشی پلیئرس کو اس طرح کی جیسے کہ وہ اپنے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستان واز وے اہیڈ، دے ور ویری ایگر ٹو گیٹ دا ریلیشن شپ اہیڈ. ہمارے کچھ یہ جو ہمارے گورنمنٹ میں جو سسٹمس ایک کے بعد ایک گورنمنٹ آتے، شاید اس کے دوران کچھ الٹا سیدھا ہو گیا، کبھی کوئی آگے بڑھنا چاہے، کبھی کوئی پیچھے ہی رہنا چاہ رہے ہو، ایسا کچھ ہو گیا. سب سے ضروری جو فائنینشیل اور جو کچھ چیزیں ایسے ہوتے تھے کہ پاکستان سے ہمیں کچھ پروڈکٹس ڈائریکٹلی نہیں ملتے تھے، وہ ہمیں ایسا ذریعہ بنانا پڑتا تھا انڈیا کے دوران، ہمیں وی ہیڈ ٹو گیٹ دوز پروڈکٹس. یہ سارے معاملات اگر مٹ جائے تو آئی تھنک پرسنلی آئی ووڈ بی ویری ہیپی بیکاز آئی نو اے ہیوج لوڈز آف پیپل بیک ان بنگلہ دیش ہو آر ویری ایگر ٹو گیٹ دا ریلیشن شپ اہیڈ. یہ میں عوام کی بات کر رہی ہوں، ڈپلومیٹس کی میں بات اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ ڈپلومیٹس کے پالیسیز بہت ساری چیزوں پر ڈپینڈ کر کے چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی ڈاکٹر یونس صاحب کے سامنے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ان کو دھیان میں رکھنا ہے، ذہن میں زیادہ رکھنا ہے. وہ یہ کہ ہمارے ایک فیئر الیکشن سیٹ اپ کرنا، یہ سارا سب کچھ. تو میں عوام کی بات جو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ لوگ بھی آئی تھنک دے آر ویل eager to get the relationship ahead with Bangladesh. اور اگر دونوں ملکوں میں تعلقات اس طرح ڈائریکٹ ہو جائے نا تو کم از کم دونوں پر یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا اس طریقے سے کہ اگر پاکستان سے پروڈکٹ ہمارے پاس ڈائریکٹ آئے کہ ہمیں کوئی ذریعہ کی تو ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہ ہی آئی نو جیوگرافیکلی بنگلہ دیش اینڈ پاکستان از located in such a way. میانمار آتے ہیں ادھر سے، بھوٹان آتے ہیں، کچھ انڈیا کے بہت سارے بارڈرز آتے ہوئے. تو ہم اگر ڈائریکٹ یہ جو کنیکشن سیٹ اپ کرتے ہیں نا، ابھی تو گلوبلی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو ہم بہت نیٹ ورکنگ کے زمانہ ہے، ٹیلی کمیونیکیشن بہت فاسٹر ہو چکے ہیں. آئی تھنک دس ڈائریکٹ ریلیشن شپ از ویری امپورٹنٹ فار بوتھ آف دا ملک. بالکل. اور جب ایک بار غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ماضی کی غلطیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں اور ان پہ معافی تلافی ہو جائے، دل مل جائیں، تو پھر جو باقی فاصلے ہیں، جو جغرافیکل پوزیشن ہے، اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. آج سب سے زیادہ نکالا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے قریب کر دیا. اچھا، آپ سے تو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ، کیا کہیں گے؟ السلام ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। मोहतरमा, मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लाम चैनल का, बिलखुसूस आपका। आप खूबसूरत और जिन चीज़ों की ज़रूरत है मुसलमान कम्यूनिटी को वो लाती हैं। मैं खिता कश्मीर से तल्लक रखता हूँ, बाउंड्री लाइन पर। तो मैंने यहाँ बरतानिया की ख़वातीन और हज़रात ने मेरी बड़ी सपोर्ट की। वहाँ मैंने पानी को स्टॉक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो लोग जाती, मैंने कहा मुझे रात का पानी दें, जो कस्तूम में या ज़ाया होता वो मुझे दे दें, मैं आपको इसका सिला ये दूंगा, आपके लिए टैंक की तरह बड़े बड़े टैंक बनाऊंगा, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कम से कम 6 महीने तक पानी इस्तेमाल कर सके उन टैंकियों से। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि खुदाई पानी ज़ाया हो जाए और तुम यहाँ टैंकी बना दो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हुकूमत के मसले तो वो दूर हैं, देहाती या जहाँ पानी ज़ाया होता है उन लोगों को कन्विंस करना, ये खुदा को बड़ा मुश्किल खुदा होता है। तक पहुँचना इंसान है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और यही बात थी कि कोई अच्छा काम मुनफरिद काम करना भी चाहे तो लोग ही नहीं करने देते। हुकूमतों भी करना चाहे तो नहीं करने देते, हुकूमत करना चाहे तो अपोजिशन नहीं करने देती, कोई ख़ुद से इंडिविजुअली करना चाहे तो लोग नहीं करने देते। ये समझाना ही बड़ा मुश्किल है। ये जो खौफ है ना कि हमारी ज़मीनें चली जाएंगी, हमारी और कोई जानी नुकसान हो जाएगा, इस खौफ की वजह से जो बेहतरी आ सकती है, जो खैर आ सकती है आपके बाद आने वालों के लिए, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। फहमीदा, जैसे कि वाटर क्राइसिस के ऊपर भी बात हो रही थी, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, बांग्लादेश का भी ये मसला है। अच्छा, इसमें बिल्कुल यही है ना कि अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कोई खैर नहीं करना चाह रहा। जैसे अगर आप एक पौधा लगाते हो, बीज बोते हो, तो आप खुद तो शायद उसकी छांव में नहीं बैठ पाते, लेकिन आपके आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो बैठ पाती हैं। अब इसीलिए अब आप अपना घर के हमारा कहीं घर ना इसमें ख़राब हो जाए, हमारी ज़मीन ना ख़राब हो जाए, फसल ना ख़राब हो जाए, आप वो डैम्स बनने ही नहीं दे रहे, अब वो नहरें निकालने ही नहीं दे रहे। ये नहीं सोच रहे कि बाद में आने वाली जो आपकी नस्लें हैं शायद उनको पानी का एक कतरा भी ना मिले क्योंकि आपने महफूज ही नहीं किया। तो बांग्लादेश में इस इशू को कैसे टेकअप किया जा रहा है? जैसे कि मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी और इससे पहले आपके सोशल मीडिया में भी आपने एक लड़की की एक रिपोर्ट पेश की थी। उसने पौधा लगाने का सोचा, हर किसी ने उसे बहुत डांटा और बहुत सारे रूड बातें भी सुनाई कि ये पौधा लगा के क्या होगा, लेकिन द थिंग वाज दैट शी हैड अ ड्रीम कि यही पौधा जब आगे जाके बड़ा हो जाएगा ना, तो यही मुल्क के लिए पूरा एकदम से जब छाया जाएगा तो उस वक्त ये बेनिफिट्स हम तब समझ सकेंगे, अभी तो समझ नहीं सकेंगे। तो बात ये है कि वाटर इश्यूज़ के बाद जब भी आते हैं, हमारे कुछ ऐसे मुल्क के कुछ ऐसे बॉर्डर रीजन्स हैं जो कि इंडिया के साथ हमारे अभी भी चल रहे हैं कि ये हमारे बॉर्डर के अंदर रहेंगे या फिर उनके, तो कुछ मसला ऐसे चल रहे हैं। पिछले गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये सारे फासले दूर हो जाएंगे, लेकिन जैसे कि हमारे आप जब पहले पूछ रहे थे कि दोनों मुल्क के अंदर सबसे बड़ी, और मैं भी ये मानती हूँ कि दोनों मुल्क के अंदर सबसे बड़ी डिस्टेंस जो होता है ना, फासला जो होता है ना, वो मिसकम्युनिकेशन ही होता है। तो ये अगर 1971 के बाद मैं देखूँ तो 1971 के बाद पाकिस्तान के साथ मिसकम्युनिकेशन के और कोई वह चांसेस ही नहीं रहे क्योंकि हम लोग आगे ही नहीं बढ़े, लेकिन इंडिया के साथ हमारी मिसकम्युनिकेशन जारी ही है और आगे भी जाकर, क्योंकि बात भी है जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसे कि इंडिया छाया हुआ है हमारे चारों तरफ से, तो ऐसे जमीन को लेकर, वाटर इश्यूज को लेकर अक्सर हमारे बीच में, और बॉर्डर्स में किलिंग को लेकर, ये बात मैं खास तौर पे बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे बॉर्डर्स में किलिंग, ये इश्यूज इतने बढ़ चुके हैं, कभी कुछ लोअर होते हैं और कभी कभार इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसके अब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन अब तक निकाला नहीं गया। पानी के जो सिलसिले होते हैं, कुछ ऐसे रीजन होते हैं, हमारे नॉर्दर्न रीजन्स जो होते हैं, आपके नॉर्दर्न रीजन्स में हिल साइड होंगे शायद, हमारे वहाँ हिल साइड नहीं है, वो वहाँ वो बहुत ड्राई रीजन है, और वहाँ कुछ सारे ज़मीनें ऐसे होते हैं कि इंडिया क्लेम करते हैं कि हमारे हो और बांग्लादेश क्लेम करता है, और हमारे नॉर्थ के वहाँ पॉवर्टी वो बिलो द लेवल है, तो नॉर्थ के वहाँ लोग अक्सर वो कुछ पोअर ही, ये पॉवर्टी जो उनको खाया जाता है, इसके अंदर अगर पानी के भी ये इशू रहे, कोई भी गवर्नमेंट आज तक इस मसले को पूरी तरह से हल नहीं कर सका। दैट इज द वेरी डिफिकल्टी दैट दे हैव बीन फेसिंग, वाटर क्राइसिस। तो इसके हवाले से कोई प्लानिंग की जा रही है? अच्छा, इससे पहले कि जो हमारे कॉलर आए थे, आपने डॉक्टर यूनुस की बात की कि उन्होंने सबको बता दिया कि मुझे अपने अंदाज में काम करने दिया जाए, अगर आपने नहीं करने देना तो मैं तो कुछ कर ही रहा था पहले, मैं चला जाता हूँ।
तो जब कोई इतना अपराइट ऑनेस्ट इंसान आता है, नॉर्मली हर कंट्री में हर जगह होता है, सिर्फ बांग्लादेश में यकीनन ये नहीं होता होगा कि ऑनेस्ट इंसान को तो काम करने बिल्कुल ही नहीं दिया जाता। ऐसे ऐसे इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं कि वो हर्ट हो जाए, दिल बर्दाश्ता हो जाए और वो चला जाए यहाँ से। तो यकीनन ऐसी बहुत सारी जो साजिशें, कॉन्स्पिरेसीज उनके लिए भी हो रही होंगी। आपको लगता है कि जब से वो आए हैं और अब तक वो इन सारी बैटल्स को फेस कर पाएँ, क्योंकि दरमियान में इंडिया ने भी एक पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन्स की, माइनॉरिटीज़ के हवाले से वो चैलेंज भी आया, फिर फ्लड का चैलेंज आया, फिर ऑब्वियसली पॉवर्टी एक चैलेंज रहती है, फिर इलेक्शन उनको कराना। आपको लगता है कि वो सारे चैलेंजेस से सही तरह से निमट रहे हैं अब तक? I think the biggest challenge currently what he is now facing is the people who are targeting him to get bullied. मतलब डॉक्टर यूनिस साहब एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन है। मैं कल भी हमारे स्पेशल गेस्ट से पूछ रही थी, जो हमारे आपके गुड इवनिंग लंदन, हमारे वहाँ शुभ संध्या कह के हमारे जो प्रोग्राम होते हैं बांग्ला में, वहाँ मैं स्पेशल गेस्ट को ये पूछ रही थी कि वो ये कह रहे थे कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहे हमें ग्लोबली। तो मैं ये कह रही थी आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर यूनिस साहब के आने के बाद भी, क्योंकि हमारे ग्लोबल परसेप्शन तो डॉक्टर यूनिस साहब से ही होते हैं। मतलब अगर बांग्लादेश का नाम कहीं भी बोला जाता है, अगर बांग्लादेश को कोई रिकग्नाइज भी, आइडेंटिफाई भी करता है, तो वो डॉक्टर यूनिस के जरिए करता है। तो वो ये कह रहे थे कि अभी देखिए एक इंटरिम गवर्नमेंट जो होते हैं, मतलब अभी जो चल रहे हैं, वो चाहे डॉक्टर यूनुस चलाए या फिर कोई भी चलाए, इंटरिम गवर्नमेंट हमेशा बहुत ही क्वेश्चन के दरमियान रहते हैं, सारे क्वेश्चंस उठाते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट क्यों है, मतलब ये क्या क्या चल रहा है। फिर शायद कंट्री के हालात अच्छे नहीं है, यहाँ पे अगर फाइनेंशियल सपोर्ट दो भी, ये कभी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के तौर पर कभी वापस नहीं आएगा। तो मसला ये है कि इनके जैसे एक बड़े आदमी पावर पे होते हुए भी क्वेश्चनेबल जितने की, लेकिन मैं उनके बात से थोड़ी आई वुड लाइक टू गो अगेंस्ट ऑफ हिम, बिकॉज जितने भी सवाल पूरे वर्ल्ड ना पूछ रहे हैं ना, बांग्लादेश खुद ही पूछ रहे हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ अस। इसलिए हमें एजुकेट करने चाहिए लोगों को। हालांकि ऑफ कोर्स एजुकेशन के रेटिंग्स बढ़ चुके हैं, अभी फीमेल्स भी मेल के साथ रेशियो में देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ चुके, लेकिन फिर भी हमारे ये जो परसेप्शंस होते हैं ना, कि हम खुद ही अपने जो पावर पे हम लोगों को बिठाते हैं, उनको क्वेश्चंस करने लग देते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादातर इनको इतने भी कंप्लेन भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट जो हमारे अवाम ने देखे वो अच्छे थे नहीं, तो ठीक है। लेकिन डॉक्टर यूनुस साहब की एक एक्सेप्टेंस है, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। इवन आई वुड लाइक टू से जितने ग्लोबली उनको ना क्वेश्चंस वो ना फेस कर रहे हो, उतने उससे ज्यादा वो अपने मुल्क के आवाम से फेस कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक मसला है, ये पाकिस्तान में भी एक मसला है कि जिसको मैं मसला भी समझती हूँ और एक ब्लेसिंग भी समझती हूँ कि पाकिस्तान में हर कोई पाकिस्तानी जब बात करता है पाकिस्तान की, वो इतने कन्वीनियंट वे में बुराई करता है पाकिस्तान की। चाहे पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता है, अपनी आर्मी को चैलेंज करता है, एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करता है, कभी कभी अपनी इतनी बुराइयां वर्ल्ड व्यू में बता देता है कि शायद जितनी एग्जिस्ट भी नहीं करती और हर कंट्री में करती हैं। तो अपने आप को इतना बुरा, अपना ही इमेज इतना बुरा बना के पेश करते हैं, बैड एम्बेसडर ऑफ देयर कंट्री। बट ऑन द अदर हैंड मैं इस इशू को ऐसे भी देखती हूँ कि कहते कि अगर आप में कोई गलती हो तो सबसे पहला जो अच्छी बात होती है कि जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि ये मुझ में गलत है, एक्सेप्टेंस ऑफ दैट गलती। तो ये भी एक उस बांग्लादेश की नेशन का भी ये एक बड़ा अच्छा, आई थिंक उन्होंने तो अपने रेवोल्यूशन से भी साबित किया कि उनको पता चल गया कि हमसे एक डेमोक्रेटिकली गलत फैसला हुआ है, उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने चेंज कर दिया। अभी भी डॉक्टर यूनुस इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, उनसे भी मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वो उनको बार बार अगर चैलेंज कर रहे हैं इन अ राइटफुल वे, दैट मीन्स के ये एक जिंदा नेशन की, कौम की निशानी है कि वो उनको भी, दे आर नॉट लेटिंग हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। एग्जैक्टली। और डॉक्टर यूनुस साहब के देखिए, एक आदमी जब कोई प्रोजेक्ट उठाता है हाथ में, तो ठीक है, criticisms are always welcome. You can do you can criticize a person, but of course there has to be a way. आपको सही तरीके से, जैसे उनके सारे कामों के, तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं उनके सारे काम की फैन हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ एक्चुअली आई डोंट थिंक मैं उसके साथ रिसाइड कर सकती हूँ, लेकिन बात ये होती है कि जब इन्होंने तो जब अपना काम शुरू
किया, इनके काम कुछ, जैसे कि वो कह रहे थे कि मेरा काम कुछ और ही था, तुम लोगों ने आकर मुझे यहाँ पे बिठाया ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। तो जो होते पावर पे जब लोग बैठते हैं तो तब उनको ऐसे ही बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो वो शायद खुद भी लेना ना चाह रहा हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं हमेशा इनके साथ। मैं रियली लाइक योर प्रोग्राम। जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं आपको ज़रूर सुनती हूँ। मैंने आपको देखा भी था पर्सनली एक दफ़ा एक शॉपिंग सेंटर में, पर मैं दूर थी तो आके मिल ना सकी। इंशाल्लाह सम अदर टाइम। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो आपने टॉपिक रखा है ना, इतना अच्छा है कि अगर इंसान, सबसे पहले जब मैं इस कंट्री में आई थी तो मेरे बाबा ने मुझे बोला था, बेटा ये कभी मत सोचना कि सामने वाला गलत है, सबसे पहले तुम अपने आप को सही करना। जब तुम अच्छी हो जाओगी तो सामने वाला खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। बहुत तो खूबसूरत। गलतियों से यही सीखा मैंने कि यहाँ पे अब मुझे बहुत सुकून रहता है कि इंसान पहले अपनी गलतियों को जज करे। तो ये टॉपिक सब कंट्रीज के लिए भी है। और वेल देन अगेन आई रियली लाइक। थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, आपने पसंद किया, आपने फीडबैक दिया और साथ में इतना अच्छा मैसेज भी दे दिया। और यही फहमीदा मैं बात कर रही थी कि पहले मैं भी कुर्ती रहती थी तमाम अपने जो फेलो पाकिस्तानी हैं उनको देख के कि क्या हर वक्त अपनी बुराइयां करते रहते हो, हर वक्त अपनी और फिर ये आपने जैसे कहा ना कि कोई तरीका होता है अपनी बुराई करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये कौम चाहे बुराई कह रही है लेकिन कम अज़ कम इसको अपना पता चल गया कि हम में ये बुराई है। जब इन्हें पता चल गया कि हम में ये बुराई है तो किसी ना किसी लेवल पे जाके ये ठीक भी कर लेंगे। कम से कम मैं अगर फहमीदा को ना सुधार सकी तो मैं खुद तो कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि फहमीदा जो है वो सिग्नल क्रॉस कर जाती है, वेट नहीं करती, अच्छा बर्ताव नहीं करती, मैं खुद तो अपने अंदर वो बेहतरी ला सकती हूँ ना। तो ये इस लिहाज से एक कौम ने जब अपनी गलतियाँ पहचान ली है, इस लिहाज से अच्छा जा रहा है। खैर, यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करनी है। ख़ास तौर पे बात करनी है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।